Okay, so good morning to all of you. Let us start with our discussion on the topic of Zillow exchange. Yesterday we have discussed what we mean by Zillow exchange. We have understood that it's a negotiable instrument. What is the meaning of instrument? Instrument is a security which is governed by a specific law which tells how that security can be treated. What is the entire lifespan of that particular security? तो सर परचेज बिल सेल्स बिल भी ऐसा देखा तो सिक्योरिटी की है और उसको भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंट्रोल करता है. तो फिर परचेज बिल सेल्स बिल को हम लोग सिक्योरिटी क्यों नहीं मानते और इसको सिक्योरिटी क्यों मानते हैं? Because the sentence which I have said just now, that although Indian Contract Act helps you to establish, Sale of Goods Act helps you to establish whether you are an offerer or offeree, whether you are acceptor or not, whether the offer was valid offer or not, whether you are rightfully having the ownership of the title of the goods or not, but it does not talk about what should happen about the lifespan of the security which is created. That is, what should happen about the purchase bill, when purchase bill should be created, how it should be created, what should be the format of the same, when it can die, when it will lose its life. Nothing is told by the Indian Contract Act or Sale of Goods Act. Sale of Goods Act tells you that a transaction of sale can be completed although there is no purchase bill or sales bill. There is no compulsion that every transaction of sale or purchase must be witnessed by a purchase bill or sales bill. You may go to a shop, buy a chocolate or Cadbury for your friend or maybe for yourself, and there is no bill which is generated. Still, you will find that you are okay with the same and the transaction of sale is taking place. That means the Sale of Goods Act or the Indian Contract Act are basically not talking about the nature, type, lifespan of the security, but they are talking about the nature of contract, nature of relationship, how that relationship can be defined, how it is different from social relationship. That's why purchase bill or sales bill, although they are instrument in writing, they should not be considered as security. What is the meaning of security? Let us take an example. Last week, your lectures were cancelled. Why? Because you are having your prelims. In prelims, let us say you are getting first rank in the class or in the college, etc. Tell me, can you show that first rank of prelims in your interview? Why? It is a result. It talks about your excellence. It talks about your performance. But that performance is not regarded as the performance for the purpose of interview to check your status, to check your understanding, to check your intelligence. We don't know exactly how the papers were set. We don't know exactly how the papers were checked. We don't know exactly did you get sufficient chance to copy or you did not get any chance to copy. We are not knowing about all these different things. Presents may be conducted in your class. The class may be made of only one student. पिताजी आज मैं फर्स्ट आया. Great. कितने लोग भाग रहे थे? एक ही भाग रहा था. That's how it works. So what we are specifying? वो SSC बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा. HSC बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा. Because then the system is designed for the purpose of conducting an exam in a particular manner. Whereas prelims जो तुम्हारे क्लास का होता है, कॉलेज का होता है, वहां पे कितना तो बार शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुमको तुम्हारा नाम ऊपर लिखने का रहेगा, तो टीचर को पता चलता है किसका पेपर है. तेरे क्लास में मस्ती करता है क्या, चलो 2 मार्क काटो. हो सकता है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अच्छा मेरा प्यारा स्टूडेंट है क्या, ये गलती रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसको नेक्स्ट टाइम बता के रखूंगा क्या करने का क्या नहीं. So we are not accepting the result of your prelims or your college prelims for the purpose of interviews, for the purpose of deciding your intelligence. But SSC board, HSC board, we are accepting that purpose. In reality, SSC board, HSC board का जो certificate है, that also may not actually speak about your real intelligence, because there is a chance that the person who has stood first in HSC board probably has not an issue of shares in the examination. While doing the studies at all, completely उसने topic option में डाला हुआ रह सकता है, लेकिन उसको मालूम है पेपर पैटर्न क्या है, तो उसने issue of shares पूरा ऑप्शन में डाल के रखा है और बाकी का क्वेश्चन बराबर से करके रखा हुआ है. पॉसिबल. सो उसको शायद 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला हुआ रह सकता है, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं कि उसको सारा का सारा अकाउंट 6 से समझ में आता है. जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे इसके पहले के एग्जाम में, वही क्वेश्चंस फिर से एक बार पूछे हुए रह सकते हैं और उसने बहुत सारा रट्टा मार के रखा हुआ था, इस क्वेश्चन उसको बराबर से सॉल्व करने को आगे रह सकता है. इट्स पॉसिबल. बट वी आर सेइंग दैट नहीं, ठीक है, एचएससी बोर्ड का है ना तो चलेगा, दैट्स ओके फॉर अस, बिकॉज़ एचएससी बोर्ड का उसका सिस्टम डिजाइन किया हुआ है. When the exams will be conducted, how the exams will be conducted, who will be paper setters, who will be moderators, who will be paper checkers, how the supervision will take place, how the papers will be ensured that the person whose son or daughter is in the examination should not be checking the papers at all.
There should be no remotest chance possible for the purpose of identifying where the paper will be. तुम्हारा क्या वो हॉलमार्क का सिस्टम रहता है, मालूम रहेगा ना तुम लोग को कैसे. So they have created a system which talks about how the system will be generated and how the system will be continued thereafter. और तुम्हारा एसएससी का सर्टिफिकेट अगर गुम हो गया तो बाद में तो फिर से अप्लाई कर सकते हो कि मेरा गुम हो गया तो मुझे मिलेगा कि नहीं. दैट्स पॉसिबल. दैट इज दे आर हैविंग द कंप्लीट सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग दैट पर्पस. तुम्हारा 12वीं का क्लास का जो प्रीलिम्स रहा है उसका रिजल्ट उनको मिल गया, शायद एक साल के लिए सर अपने पास डेटा में रखेंगे कि भाई ये सर्टिफिकेट हो रहा है, इसका इतना इतना मार्क्स मिला करके. बट देयर आफ्टर देयर इज नो गारंटी दैट सर इज गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर डेटा बिकॉज़ सर नोस दैट दिस डेटा इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनीथिंग एल्स. That means here you will find that is it an exam? Yes. Is it a result? Yes. Is it a printed result? Yes. But at the same time, this result is not acceptable for the purpose of anything else in future. Whereas SSC बोर्ड का कंसिडर करेंगे क्योंकि क्या है वहां पे सिक्योरिटी क्रिएट किया हुआ है और वो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी है. समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ. और वो सिक्योरिटी कैसे क्रिएट किया है, उसका फोकस ये है कि सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है. उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर से बाहर आने के बाद ही तुम्हारा सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसके पहले जनरेट नहीं हो सकता. उसमें कोई मैनिपुलेशन कर सकता है क्या? यस पॉसिबल है. बट मैनिपुलेशन कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम फालतू है. इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा चालाक नहीं तो उसने सिस्टम के अंदर के बैठे हुए लोगों का हार्ट ढूंढ लिया है. वो एक हाथ दो आदमी ऐसा कुछ मस्ती कर सकता है, बट उसको भी मस्ती करने के लिए बहुत सारा दिमाग चलाना पड़ेगा. इट्स नॉट इजी फॉर एनीबॉडी एल्स टू मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग. सेम इज द केस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम. We have created a system to create the life of that particular security, which is going to go beyond the people who are the original initiators of that security. And original initiators of the security may remain or may not remain, but that particular document will be valid. That's what we are interested in creating. That's why it is considered as a security. Second part, that security is negotiable. That means it can be used by us for the purpose of negotiations, for the purpose of settling our transactions. Although we are not the creators of the security, we are just the holder of that security. Still, we can use it for the purpose of settling our transaction. तो ट्रांजैक्शन मेरा तुम्हारे साथ था और मैंने तुम पे बिल ड्रॉ किया था, तुमने एक्सेप्ट करके मुझे दिया था. बाद में मैंने इसको एंडोर्स किया है, इसने किसी और को एंडोर्स किया, किसी और को एंडोर्स किया. अभी उनका दोनों का आपस का ट्रांजैक्शन है. उसको सेटल करने के लिए ना उसने ड्रॉ किया ना इसने एक्सेप्ट किया, फिर भी मैंने जो इस पे ड्रॉ किया है पर इसने एक्सेप्ट करके मुझे दिया हुआ है, वो वाला सिक्योरिटी वहां पे चल सकता है. बिकॉज इट इज डिजाइंड इन दैट पर्टिकुलर मैनर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. I hope it is clear to all of you now. So what is a negotiable instrument? It's an instrument which is having its own life. Which is having its own life, birth, death, जो भी कुछ है उसका साइकिल पूरा पूरा. कि कभी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. उसके बीच में कुछ गड़बड़ होगा जिन्हें किसके पास जाने का उसका पूरा पूरा सिस्टम रेडी है. That's why it is a special instrument. Now comes the next part. मैंने आपको कल बोला था 3 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हमने भी कानून में आकर दिया हुआ. कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोले मैंने? नंबर 1 promissory note and bill of exchange. And promissory notes are basically for the purpose of transaction of goods and services or maybe properties. Generally properties के लिए कोई bill of exchange और promissory note को यूज करता नहीं है क्योंकि the value is far too large. तो bill of exchange या फिर promissory note क्या बोलता है? जनरली आज मुझे तुम्हारे पास से गुड्स चाहिए है, आज मुझे तुम्हारे पास से सर्विसेज चाहिए है, ऐसा नहीं है. या फिर है लेकिन मुझे तुमको देने का नहीं है, मुझे देने का है लेकिन कब देने का है? मे भी 3 महीने के बाद, मे भी 2 महीने के बाद. या फिर आज मेरे पास पैसा नहीं है या फिर 2 या 3 महीने के बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, इसका मुझे गारंटी है. आज तो मेरे पास पैसा नहीं लेकिन 2 या 3 महीने के बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, इसका मुझे गारंटी है. लेकिन मुझे जो गारंटी है इसके बेसिस पे तुम मुझे गुड्स दे दोगे. तो तुम्हारे पास का गुड्स चला गया, तुमने गुड्स कैसे परचेस किया था? ऑब्वियसली बाय परचेसिंग देम. That means obviously by paying for them. तो तुम्हारे पास की कैश चली गई है तो तुमको भी मेरे पास से कैश चाहिए थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं 3 महीने के बाद में दूंगा. फिर केस तुमको अभी बीच में अगर कैश की जरूरत आन पड़ी तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक सिक्योरिटी रहना चाहिए. तो तुम बोलते हो सर ठीक है मैं पे बिल ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करके दे दो, फिर ये बिल मैं किसी और के बाद चेक एंडोर्स कर सकता हूँ, उसके बाद से मैं गुड्स ले सकता हूँ. मैं भी उसका 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मांग लूंगा और उसको बोलूंगा कि तू मुझे बिल ड्रॉ मत कर, मैंने ऑलरेडी आनंद सर पर बिल ड्रॉ किया हुआ है, आनंद सर ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया हुआ है, ये वाला बिल मैं तुझे एंडोर्स करता हूं, तू मुझे उसके बदले में गुड्स दे दे. 3 महीने का तो आनंद सर के पास जा और आनंद सर कैसे पैसे ले दे. सो काम बन जाएगा. बार्टर एक्सचेंज का भी झंझट नहीं और अर्जेंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश का भी झंझट नहीं. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? 3 महीने के बाद आपका सचमुच पैसा आएगा ना? हाँ आएगा. लेकिन नहीं आया तो बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. बिकॉज नाउ देयर इज अ कंप्लीट सिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हिच एंश्योर्स दैट इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम माय कम्युनिटी, इवन इफ यू डोंट फॉलो माय गॉड, इवन इफ यू डोंट फॉलो माय बिलीफ्स और पुनर्जन्म एंड एवरीथिंग एल्स, still I am having full guarantee that तुमको भगवान के घर में जो भी कुछ लाठी वाठी है उसका सहारा लेने का जरूरत नहीं.
मुझे इस जन्म में, इस दुनिया में हमने बनाया हुआ जो लीगल सिस्टम है उसी का सहारा मिल जाएगा। तो सर कैसे बोल रहा हूँ, मुझे तुमको ज्यादा फोन करके गाली वाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। Are you getting the point what I'm trying to say? There is an impartial system just like God who is not favoring anybody. जिसने गलती किया उसको पनिशमेंट। छोटा बच्चा रहेगा लेकिन आग में हाथ डालेगा तो जलेगा, बूढ़ा आदमी रहेगा आग में हाथ डाले तो भी जलेगा। छोटा बच्चा इसको नहीं जलाऊंगा, बड़ा बच्चा है तो उसको जला दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। भगवान बोलते हैं सबको सेम, वैसा अपना कानून का सिस्टम सबको सेम रहने वाला है। So there is no tension for me. I can transact with anybody. That's the beauty of this particular system, which is created under Negotiable Instrument Act. It doesn't depend upon community. It doesn't depend upon social ostracization. It depends upon pure rule of law. But it specifies that you have to create the structures according to the things which are mentioned in the law. So you cannot create bill of exchange in any manner. There is a format for bill of exchange. You cannot create promissory note in any manner. There is a format for promissory note. Similarly, then you cannot prepare check in any manner. There is a format for check. Bill of exchange and promissory notes can be prepared by you on your own paper. Only thing is that you are going to affix a stamp, which means again you are going to the government department for the purpose of getting stamp, and thereafter you are going to get that particular thing as a valid method or valid document which is created under the law. तुम्हारा कागज है, तुम्हारा सिग्नेचर है, लेकिन उसका सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट हम बोलेंगे वैसा है। एड्रेस कहाँ पे लिखने का, ड्रॉ करने वाले का, रिसीव करने वाले का, फिर एक्सेप्ट करने वाले का कहाँ पे लिखने का, एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्ट किया है कैसे समझेगा उसका भी टेक्निक है। सिर्फ साइन किया तो एक्सेप्टेड होता है क्या, कि एक्सेप्टेड बोल के बाद में साइन करना पड़ता है। ये सब चीजें कहां से आ रहा है, 12वीं के बुक में लिखा इसकी वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि आपने को नेगोशिएशन एक्ट में बोला हुआ है कि बाबा इस तरह से करने का, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। जिस तरह से तुम्हारे 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट है। तो समझ में कैसे बोल रहा हूं, उस तरह से डिजाइन करो, काम करो। अगर प्रॉमिसरी नोट रहेगा तो थोड़ा उल्टा बात है। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या है कि तुम खुद को प्रॉमिस कर, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसा मिलने का बाकी है, ज्यादा पैसे मिलने से बाकी है, तो मानुस तुमच्यावरती बिल ड्रॉ करणार आहे, तो तुम्हाला ऑर्डर देणार आहे कि आफ्टर सो मेनी डेज और आफ्टर सो मेनी मंथ्स पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द व्हॅल्यू रिसीव्ड। प्रॉमिसरी नोट मध्ये स्वतः सांगते मला ऑर्डर नको देऊ बाबा, मी सुद्धा सांगतो आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर सो मेनी डेज और आफ्टर सो मेनी वीक्स आई विल पे यू, आई प्रॉमिस टू पे यू ऑल योर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऍक्ट लक्षात ठेवलं मग की ही प्रॉमिसरी नोट आहे. This can work like a point at this amount which I had shown you yesterday, and this probably you must be having in your pocket just now, not mine but your own. So in that case, वैसे वाला नोट सब लोग बना सकेंगे. This will become a dangerous thing. Everybody should not be Reserve Bank of India का गवर्नर, सबके पास उतना ताकत नहीं रहना चाहिए. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बोल दिया कि अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाना अलाउड नहीं है. I repeat, अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाना अलाउड नहीं है. If you create an undated instrument and you accept the same and you use it afterwards, or afterwards it doesn't get honored, in that case don't come to Indian legal system for the purpose of any remedy. We have already told that undated instruments are void. समझ हम कैसे बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट बनाने का मतलब उसका फॉर्मेट है, उसी तरीके से बनाने का उसका डेट से रहना ही चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का स्पेशलिटी क्या रहता है, उसमें किस दिन बनाया वो डेट भी लिखा जाता है और कब ऑनर करने का वो डेट भी लिखा जाता है। तब तक वो जिंदा रहता है, उसका वो डेट खत्म हो गया, उसके बाद में कागज जिंदा रहेगा तो भी वो इंस्ट्रूमेंट का पावर खत्म हो गया रहता है, उसके अंदर की आत्मा खत्म हो गई रहती है, सिर्फ बॉडी पड़ा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं, डेड बॉडी है वो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसके अंदर की आत्मा कौन सी है, बिलीफ कि बाबा नहीं ये चलेगा, इसका लाइफ अभी तक खत्म हुआ नहीं है, उसको लिख के रखा हुआ है, ये 3 साल का है, फिर 3 महीने का है, फिर 2 महीने का है, फिर 6 महीने का है वगैरह वगैरह। तो जब तक वो 6 महीना खत्म नहीं है तब तक इसको हम आगे यूज कर सकते हैं, नेगोशिएशन के आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार 6 महीना खत्म हो गया, वो ऑनर हुआ है कि नहीं हुआ उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं, आगे अब इसको ट्रांसफर करने का है। So on bill of exchange and on promissory note, the date of making is mentioned, but the date of making is not the date of honoring. On that day, it has come to life, but on that day, it is not going to get realized. जो दिन पे बनाया है, जो दिन लिखा है कि इस दिन बनाया हुआ है, उस दिन से उसको पावर आ गया रहता है, बट वो पावर यूज कब कर सकते हैं आप लोग, जब वो नीचे का पीरियड खत्म होगा तब उसको यूज कर सकते हैं, तब तक उस पावर को यूज नहीं कर सकते, तब तक वो पावर है बस आगे ट्रांसफर करने का। दैट्स द ओनली थिंग। तुमको समझ में कैसे बोल रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, चेक इज टोटली डिफरेंट। चेक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने बैंकर को कुछ गुड्स दिया हुआ नहीं है, बैंकर ने को कुछ गुड्स दिया हुआ नहीं है, बल्कि हमने हमारे पास का पैसा बैंकर के पास दिया हुआ है, और उसके बदले में बैंकर अपने को क्या देगा, चेक बुक देगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। So bill of exchange or promissory note are for the purpose of settlement of goods and services का transaction. Check on the other hand is a book which is given by the banker because you are holding an account with that particular bank.
in that account, how much money you are going to maintain? That is not important for him. That's a totally different type of situation. वो बोलेगा आपका अकाउंट कौन से मिनिमम बैलेंस फ्रेंड्स का अकाउंट है, इससे कम रखोगे तो चेकबुक मिला हुआ है, इससे कम बैलेंस रखो तो आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा, चार्जेस लगाऊंगा, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेकबुक नहीं दूंगा. आपने अकाउंट ओपन किया, आपको चेकबुक मिल गया. वो चेकबुक कितना बड़ा चाहिए? 5 पन्ने का चाहिए कि 10 पन्ने का चाहिए कि 25 पन्ने का चाहिए? हाउ मेनी लीव्स यू वांट इन दैट? कि 50 का चाहिए कि 100 का चाहिए? करंट अकाउंट रहेगा तो बोलेंगे 100 का 50 का दे दो, क्योंकि करंट अकाउंट मतलब मेरे को बार-बार चेक शुरू करना है. सेविंग अकाउंट रहेगा तो मैक्सिमम 25 का मिलता है, वो भी मिलता है नहीं, 10 का ही देता है. और नया अकाउंट ओपन किया रहेगा आईसीआईसीआई बैंक जैसा कोई बैंक रहेगा तो इमीडिएटली वो 5 का एक छोटा सा चेकबुक देके रखते हैं, टेम्पररी चेकबुक. लाइकवाइज तो चेकबुक मतलब बैंकर ने अपना खुद का कागज यूज किया हुआ है, उसको स्टैम्प का जरूरत नहीं है, उसको स्टैम्प का जरूरत नहीं है. लेकिन कागज किसका है? बैंकर का है. उसको नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नंबरिंग के हिसाब से बैंकर सब मेंटेन करके बैठेगा कि मैंने इनको इस अकाउंट को ये नंबर से लेकर ये नंबर तक का चेकबुक दिया हुआ है, उसमें से सो चेक आया हुआ है आज फिर से ऑर्डर के लिए, उसको ऑर्डर करने का कि नहीं करना है. बिल ऑफ एक्सचेंज में जब मैं तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करके मुझे देते हो, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का झंझट रहता नहीं जाता. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मुझे चेक देने का है तो अकाउंट ओपन करते वक्त मुझे पहले बैंकर के पास क्या देना पड़ेगा? स्पेसिफिक सिग्नेचर का कार्ड. और बाद में जब मैं चेक इशू करूंगा तो चेक जब बैंकर के पास जाएगा तो बैंकर सबसे पहले क्या चेक करेगा? सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बाद में बाकी कैसे चेक करेगा? whereas बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पे सिग्नेचर मैचिंग, सिग्नेचर कार्ड ऐसे कुछ झंझट है ही. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? जिस तरह से तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर सकते हो, जिस तरह से तुम प्रोमिसरी नोट को एंडोर्स कर सकते हो, एक्चुअली उसी तरीके से तुम चेक को भी एंडोर्स कर सकते हो. लेकिन चेक में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स रहती है एज कंपेयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. चेक में तुम उसको बेयरर चेक बना सकते हो, चेक में तुम उसको अकाउंट पे चेक कर सकते हो, चेक में तुम उसको नॉट निगोशिएबल चेक कर सकते हो, चेक में तुम उसको ऐसा भी कर सकते हो कि निगोशिएशन करने का तो करो लेकिन करते करते वापस मेरे पास नहीं आना चाहिए. मतलब मैंने तुझे दिया, तूने उसको दिया, तूने उसको दिया, उसने उसको दिया, ऐसा करते करते आगे घूम रहा है वो. और बाद में इसने मेरे पास से कुछ परचेस किया था, मुझे पेमेंट करना चाहिए था, उसने उसने मुझे चेक वापस दिया, बोला कौन सा चेक है? मेरा वाले पे. बोलूंगा लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा है? नॉट निगोशिएबल. इसका मतलब निगोशिएशन होना ही नहीं चाहिए था. या फिर उसमें लिखा है मैंने सैंस रिकोर्स, SANS सैंस रिकोर्स, मतलब वापस मेरे पास नहीं आना चाहिए. सैंस वर्ड आपने इसके पहले कब सुना है? सैंस सेरिफ. सैंस सेरिफ कहाँ पे सुना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें फॉन्ट रहता है. सेरिफ मतलब क्या? सेरिफ मतलब जब तुम लेटर के साइड में कुछ शार्प पॉइंट लिखते हो उसको बोलते हैं सेरिफ. इसमें सेरिफ है कि नहीं बताओ? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर वर्ड में सेरिफ है कि नहीं बताओ? अभी देखो यहाँ पे एक के नीचे साइड में छोटा सा लाइन दिख रहा है क्या? छोटा सा इधर भी छोटा लाइन दिख रहा है. समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड एज सेरिफ. सेरिफ मतलब वहां पे वर्ड खत्म हो गया इसलिए तुम अलग से लाइन ड्रॉ करते हो. दैट इज कॉल्ड एज सेरिफ. सैंस सेरिफ मतलब क्या है? जिस फॉन्ट में ऐसा लाइन नहीं है, दैट इट इज कॉल्ड एज विदाउट सेरिफ. सैंस मतलब विदाउट, ऐसे एन सैंस का मतलब विदाउट. तो विदाउट रिकोर्स मतलब मेरे पास वापस नहीं आना चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा भी तुम कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कर सकते हो, चेक में तो बहुत सारा वर्क कर देते. तो आइडिया इज दैट चेक इस तरह से तुम यूज कर सकते हो. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट जिस दिन बनाया है उस दिन उसका पावर सिर्फ चालू हुआ रहता है, बट यूज नहीं कर सकते. और चेक जिस दिन उधर बनाया हुआ है, जो डेट लिखा ऊपर, उसी दिन उसका पावर चालू हो गया रहता है और उसका बाद में उसका लाइफ फाइनाइट रहता है. बिल ऑफ एक्सचेंज का लाइफ, प्रोमिसरी नोट का लाइफ डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर मेकिंग इट. Whereas check का life is not dependent on the people who are making it or person who is drawing it. Check का life is dependent upon the rules of banking, which tells at maximum 3 months. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैक्सिमम 3 months, आगे कुछ है नहीं. तो ऊपर जो डेट लिखा हुआ रहेगा उस डेट से 3 महीने के अंदर तुमको चेक को ऑनर करवाने को लेके जाने का रहेगा. 3 महीने के अंदर पेटेंट लिखा तो चेक को सेल हो गया रहता है. सेल हो गया मतलब उसको ऑनर करने का जिम्मेदारी बैंकर के पास नहीं रहता. और क्यों रहेगा? Okay. So these are the basics of any negotiable instrument. बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट हम बनाएंगे, हमारा कागज रहेगा, फॉर्मेट लेकिन फिक्स रहेगा,
स्टैम्प लगाना जरूरी पड़ेगा। जिस दिन बनाया उस दिन उसको पावर आ गया रहता है, लेकिन पावर यूज करना अलाउड रहता नहीं है। पावर यूज करना कब रहेगा? जिस दिन बोला है उस दिन, वो अगला एक्स्ट्रा पीरियड के बाद, और उस एक्स्ट्रा पीरियड के बाद वो स्टेल नहीं, उसके बाद इमीडिएट उसको ऑनर करवाना ही पड़ता है, उसके बाद उसको आगे निगोशिएट करना पॉसिबल रहता नहीं। ऑन दैट पर्टिकुलर डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मैच्योर्ड बाय डिफॉल्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी negotiated or transferred or endorsed thereafter। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उस दिन उनको जाके उसको ऑनर करवाने का रहेगा। और चेक के बारे में क्या रहेगा? जिस दिन लिखा है उस दिन उसका पावर चालू हो गया है, और एट द सेम टाइम उसको ऑनर भी करवाना पड़ेगा इमीडिएट, उसको आगे एक्स्ट्रा पीरियड नहीं। और 3 महीने का तो उसका पावर अपने आप खत्म हो जाता है, बट 3 महीने तक वो जिंदा रहता है। डेट बनाने के बाद में भी 3 महीने तक जिंदा रहता है। यहाँ पे डेट के बाद में जब तक पीरियड है तब तक जिंदा है, लेकिन यूज नहीं कर सकते हो, और जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तभी यूज करो और खत्म। नहीं सर, वो पीरियड के बाद में 3 महीना और रुकूंगा, नहीं, उसके बाद में 3 महीना रुकना पॉसिबल नहीं। These are the specialties of bill of exchange and promissory note and check। अपने सिलेबस में अभी सिर्फ क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट है। अभी मैं चेक के बारे में बात करने वाला नहीं हूं व्हेन इट कम्स टू जर्नल एंट्रीज। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ थियरी, आर बेसिकली द एबिलिटी गिवन बाय द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया टू ऑल ऑफ यू टू क्रिएट योर ओन मनी। आई रिपीट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स इज द एबिलिटी given by the Indian economic system or Indian legal system to all of you to create your own money। तुम्हारे पास गुड्स है, तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है, तुमको किसी को गुड्स बेचने का है, उसके पास आज पैसा नहीं है, तो सर बार्टर एक्सचेंज, उसके पास वो गुड्स रहना चाहिए जो मुझे चाहिए। नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बार्टर एक्सचेंज में उतरो मत। और तुमको गुड्स बेचने का तो बेचो, लेकिन सर उसके पास पैसा नहीं तो क्या करूं? मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन उसके पास बाद में पैसा आ सकता है क्या? अगर आ सकता रहेगा तो तुम लोग आपस में खुद को खुद बना लो कागज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कितना पावरफुल सिचुएशन है। आरबीआई के गवर्नर को बोला हुआ है, राजा 2000 के ऊपर एक भी कागज प्रिंट नहीं कर सकते तू। द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच यू कैन पुट ऑन अ पेपर इज ओनली ₹2000। आरबीआई के गवर्नर को दिया हुआ रिस्ट्रिक्शन है वो। हम लोगों को, हम बिल ऑफ एक्सचेंज 1 लाख का भी बना सकते हैं, 10 लाख का बना सकते हैं, 1 करोड़ का बना सकते हैं, 10 करोड़ का बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ weight your signature has, and other party is going to trust it, and the legal system is going to protect it। समझ में कैसे बोल रहा हूँ कि तुमने बोला हुआ है तो आगे नेगोशिएशन के लिए चलेगा, और अगर ऑनर नहीं हुआ तो इन दैट केस तुम्हारे पैसे वसूल करवा के दिखाएंगे, नहीं तो इंसॉल्वेंसी के लिए जाता है वो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर गिवन टू ऑल ऑफ अस, बट उसका कुछ बेसिक रूल सेट अपने को फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा रहेगा तुम्हारा? कि इसका 3 अलग अलग टाइप का मेथड्स रहता है बनाने का। एक रहता है बिल आफ्टर डेट, एक रहता है बिल आफ्टर साइट, और एक रहता है बिल ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड, ऑन साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ऐसा उसको बोलते हैं। आफ्टर डेट बिल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आफ्टर डेट बिल? सॉरी, देखो तुम सिर्फ हाथ करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे सुनना पड़ता है। सिर्फ अभी तुम्हारे मन में भावना है तो समझ में आ सकता है, लेकिन मैं वो भावनाओं के हिसाब से मार्क नहीं दे सकूंगा, तुमको तुम्हारी भावनाएं बतानी पड़ेगी। ओके, बोलिए, व्हाट इज आफ्टर डेट बिल? Yes, the life of bill is counted not from the date of acceptance of the bill, but from the date of drawing of the bill. On the other hand, if the bill is after sight, then it is called as the period of bill, or the life of bill is counted from the date of acceptance and not from the date of drawing. Next, if it is on site, on demand, on presentment, that means the bill will have to be honored whenever it is demanded. आज बनाया हुआ है, but after so many days ऐसा नहीं बोला है। Whenever it is demanded, you have to pay. Upon presentment, pay me or my order. That is called as on site, on demand, on presentment. अपने जो अकाउंटिंग के वर्क्स रहते हैं उसके अंदर ऑन साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट के बिल आते नहीं। अब अकाउंटिंग के जो प्रॉब्लम्स है 12वीं के सीए फाउंडेशन के, उसमें जनरली आफ्टर साइट ने तो आफ्टर डेट वाली बिल्स आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तुम मुझे बताने वाले हो। आज आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा, चाहे तो फिर से वेरीफाई करके कल दिया तो भी चलेगा। अगर प्रॉब्लम शांत बैठा हुआ है, उसने बोला ही नहीं है कि बिल कौन सा है, आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, तो फिर आप उसको कौन सा वाला बिल अज्यूम करोगे? आफ्टर डेट के आफ्टर साइट? अरे श्योर, वेरी श्योर। एक बार घर पे जाके फिर से देखो और कल बताओ। मैं कुछ हाँ या ना नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसी बहाने जरा घर पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल नाम का एक चीज है इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ, थोड़ा खोल के देखोगे, उसको नया नया बुक का स्मेल आता रहेगा अच्छा वाला। आपने खोला नहीं रहेगा करके तो जरा वो भी खुल जाएगा, वो भी तो अच्छा लगेगा। एक बार प्लीज घर जाके देखना। ओके, आफ्टर डेट कंसीडर करने का कि आफ्टर साइट कंसीडर करना। ओके,
क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आपका आंसर बराबर भी रह सकता है, मुझे पता नहीं, मैं जस्ट तुमको बताता हूँ मैं कैसे कंफ्यूज होता हूँ कि एन ऑफर इज एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बिल ड्रॉ किया और तूने एक्सेप्ट किया है ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस के नीचे डेट डाला हुआ नहीं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बात अलग है। एक्सेप्टेंस के नीचे डेट डाला हुआ है, मतलब ये ऑफर भी दिख रहा है, एक्सेप्टेंस भी दिख रहा है, एक्सेप्टेंस का डेट भी दिख रहा है और वो डेट अलग है। तो फिर जिस दिन तुमने मेरे पास बिल भेजा उस दिन के आगे देखने का, मैंने जब साइन किया तब देखने का कि जिस दिन बिल बनाया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने आज बिल बनाया, यू आर ड्रॉन द बिल टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे? 24 जैन। ओके, 24 जैन को तुमने बिल ड्रॉ किया और वो तुमने मुझे भेज दिया, लेकिन 2 महीने का बिल था। तो 24 जैन टू 24 फेब, 24 फेब टू 24 मार्च, ऐसा 2 महीने का बिल होने वाला था वो। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तुमने क्या कि मुझे 21 मार्च को बिल भेजा और मैंने 21 मार्च को नीचे लिख दिया यस एक्सेप्टेड। तो तुम मेरे पास पैसा मांगने को कब आओगे? 24 मार्च को आओगे कि 27 मार्च को आओगे कि जिस दिन मैं एक्सेप्ट किया उसके आगे जाओगे? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। तुमने बोला आफ्टर डेट, इसका मैंने बोल रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम मेरे मन में आता है। अब मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको स्टडी मटेरियल देखना ही पड़ेगा। समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके चलो ठीक है। So these are the points which are required to be, अरे ये क्या चल रहा है? अपने को डिवेंचर्स नहीं करने के ना तुमको, तुम लोग नहीं है तो सी एंटर के बच्चे हैं। ओके ओके, आई एम सपोज्ड टू गो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। या हां, ऑन प्रेजेंट टेंस से बिल असतो त्याचे लास्ट डेट दैट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इट इज डेटेड, इट इज नॉट अनडेटेड। और प्रॉमिसरी नोट ऐसा करना अलाउड नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी क्रिएटेड बाय, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट इज लाइक करेंसी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट इज नॉट लाइक करेंसी नोट, इट्स एन ऑर्डर सब्जेक्ट। You can create an order in any manner, but you cannot create a promise which is having infinite life. That's about it. Okay, so अभी मुझे जरा तो मदद करने वाले हो, प्लीज टेल मी बिल ऑफ एक्सचेंज को कितने पार्टीज रहते हैं बाय डिफॉल्ट? एनी बिल ऑफ एक्सचेंज हाउ मेनी पार्टीज? 3। कौन से? बेसिकली बोलो ना, बेसिकली तुम आगे क्यों जाते हो? फिर मैं एंडोर्सर भी डाल सकता हूँ, उसमें क्या है? बेसिकली देयर आर 2 पार्टीज, one is a drawer and one is a drawee. Drawer and drawee are त्याची मैत्रीण कुठे बघा, बरेच दिवस येत नाही इकडे बसतील ती, तरी सोडलं की काय क्लास? सीए फाउंडेशन सोडलं का? मला आठवण ठेवते हा, 2 मुली आहेत इकडे बसतात त्यांना. अरे तुमचे मित्र मैत्रीण असेल जरा त्यांना फॉलो करत जा रे. चलो ओके, एनीवे बाय. Yes, I was talking about parties. How many parties are there for bill of exchange? What are they? Drawer मतलब the person who, drawee मतलब the person on whom the bill is drawn. Can the drawee and acceptor be different? No. The drawee is the same person who should accept the bill. Yes. There is no question of acceptor being different than drawee. तो इसका मतलब एक जगह पे कौन है? ड्रॉअर है, एक जगह पे कौन है? ड्रॉई नहीं तो एक्सेप्टर। ड्रॉई एक्सेप्टर रहता है कि ड्रॉई एक्सेप्टर बनता है? बनता है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कौन है? ड्रॉई है, और जब वो एक्सेप्ट करेगा तब वो कौन है? एक्सेप्टर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स एन नेक्स्ट पार्ट। तो एक ड्रॉअर है, एक ड्रॉई है जो बाद में एक्सेप्टर बन जाने वाला है। नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी दैट द ड्रॉई who becomes an acceptor upon due date must make payment to the drawer only? No. Why? Because we already said pay me or my order. That's why the person to whom the payment is made is called as paying, and the person who makes the payment is called as payer. So payer is going to be nothing but drawee, is nothing but acceptor. So drawee and acceptor and payer are one and the same, and they are generally debtor. Yes. समझ में? वो डेटर रहता है, उसमें पैसा देने का रहता है। इसका मतलब कोई बोलेगा इधर कौन है? इधर मत, तुम लोग नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ मेरा लेफ्ट एंड राइट हैंड बोल रहा हूँ। इधर कौन है? इधर है तुम्हारा डेटर who first becomes a debtor, then becomes a drawee, then becomes an acceptor, and ultimately becomes a payer. उसका रूप बदलते रहता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो लड़की जैसा है, पहले कौन है? छोटी लड़की है, बाद में कौन है? सिस्टर है, बाद में कौन है? बीवी बन जाती है, बाद में कौन है? मम्मी बन जाती है, बाद में कौन है? ग्रैंडमदर बनती है। सब बार बार चेंज होती रहती है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
तो सेम इज अ केस हियर, पहले कौन, डेटर। लेकिन अगर सपोज डेटर डेटर करके खेलता रहा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा, फिर ड्रॉई वगैरह नहीं बनेगा। लेकिन बिल ड्रॉ किया उसके ऊपर तो क्या बन जाएगा, ड्रॉई। तो उसने एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, फिर उसने ड्यू डेट पे ऑनर किया तो क्या बन जाएगा, पेयर। ये पे कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट, और उधर कौन बैठा है, राइट साइड में कौन बैठा है अपना, तुम लोग नहीं, राइट साइड में कौन बैठा है इधर, ड्रॉवर। ड्रॉवर इज जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर, हु बिकम्स अ ड्रॉवर, हु मे बिकम द पे और मे बिकम द एंडोर्सर। समझे, क्योंकि उसके बाद बिल पड़ा हुआ किसी और के नाम से एंडोर्स कर सकते हैं। तो एक जगह पे कौन है, क्रेडिटर, नहीं तो ड्रॉवर, नहीं तो एंडोर्सर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो डिस्काउंटर भी बोल सकता है कोई, तो नहीं तो सेंडिंग टू बैंक फॉर कलेक्शन, ऐसा वाला आदमी कुछ तो बोल सकते हैं। बट बेसिकली वो कौन है, बेसिकली वो कौन है, क्रेडिटर है, हु इज द ड्रॉवर एंड हु मे बिकम द पेई और हु मे बिकम द एंडोर्सर। और यहाँ पे कौन है, चार जो अलग अलग रोल है उसके नाम से ही है, और वो चारों रोल उसी सीक्वेंस में होते हैं। इधर चारों रोल, तीनों चारों रोल हो गए ऐसे गारंटी नहीं है, शायद होगा शायद नहीं होगा, शायद होगा शायद नहीं। क्रेडिटर तो होता ही है वो, और ड्रॉवर तो बनता ही है। बाद में शायद वो पेई बन जाए, शायद वो एंडोर्सर बन जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। यहाँ पे वैसा नहीं, पहले डेटर रहेगा फिर ड्रॉई बनेगा, पहले डेटर रहेगा फिर ड्रॉई बनेगा, उसके बाद में एक्सेप्टर बनेगा, फिर बाद में पेयर बनेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी डिफिकल्टी? तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं मेरा लेजर अकाउंट बनाना चालू करता हूँ तो मैं पेज को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, नहीं तो दो अलग अलग पेजेस यूज करता हूँ। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम क्या बोलता है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एज वेल एज बी, दोनों के बुक्स में एंट्री करने को बोलता है। तो मैं ऊपर क्या कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जनरली मैं ड्रॉवर को रख देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जनरली क्या करता हूँ, ड्रॉवर को रख देता हूँ, ऊपर लिख के रखता हूँ क्रेडिटर, ड्रॉवर, ऐसा लिख के रखता हूँ। और राइट हैंड साइड में डेटर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेयर, ऐसा लिख के रखता हूँ, झंझट नहीं चाहिए। फिर बाद में प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ, फिर इधर कौन ए के उधर कौन बी के, इधर बी के इधर है, वो बाद में लिखेंगे। बट पहले लिख कर रखने का ये कैटेगरीज है। Once this is clear, then it becomes easy for the purpose of understanding how the entries should be passed. Then comes the next part. You are going to tell me, हमने कल डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करने के पहले क्या जरूरी है, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी वैलिड डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होना जरूरी है। याद है क्या आपको सबको? तो वैलिड डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप को भरने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो यू टेल मी, ये मेरा तुम्हारे हिसाब से तो लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे हिसाब से जो राइट हैंड साइड है, उधर कौन बैठा है अपना, ड्रॉवर बैठा हुआ, उधर कौन बैठा दूसरी जगह पे, ड्रॉवर बैठा हुआ है। तो ये ड्रॉवर के बुक्स में पहले कौन सा एंट्री होगा, मुझे एंट्री याद नहीं आ रहा, तुम बताओ। बिल का झंझट ही नहीं है, क्लियर। सो एंट्री हमेशा क्या रहेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, इधर क्या एंट्री होगा दूसरी जगह पे। दिस एंट्री इन्वॉल्व्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और दिस एंट्री इन्वॉल्व्स सेल ऑफ गुड्स एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने उसके अंदर अपना एंट्री किया हुआ नहीं है, लेकिन बाद में अपना जो हीरो उधर का वो बोलता है सिर्फ एसएससी का पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं देंगे, हम लोग होशियार है, सर्टिफिकेट एसएससी बोर्ड के पास से लेके आएंगे। वैसा बोलेगा चलो अभी हम क्या करते हैं, हमने जो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट किया है उस रिलेशनशिप का हम लोग एक सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, जैसे एसएससी का सर्टिफिकेट, जैसे एचएससी का सर्टिफिकेट, वैसा हमारे ट्रांजैक्शन का डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट कि जिसमें तू मुझे 3 महीने का जितना पैसा देने वाला है। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? ये सर्टिफिकेट कौन देगा, कोई बोर्ड नहीं देगा, हम लोग भी क्रिएट करेंगे। लेकिन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर व्हिच इज गिवन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नाउ टेल मी, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन पहले किधर होगा, ड्रॉवर के बुक्स में होगा कि ड्रॉई के बुक्स में होगा? ड्रॉवर के बुक्स में होगा। सेल का ट्रांजैक्शन हो चुका है, परचेस का ट्रांजैक्शन हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप, फिर से बार बैडमिंटन चालू है अपना, टेनिस चालू है अपना। तो बॉल किसके कोर्ट में चला गया, फिर से ड्रॉवर के कोर्ट में चला गया। ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा बताओ? बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट में तो डेटर्स अकाउंट में वो लोग क्या बोलते हैं, तो अलग चीज की बात कर रहे हैं, तो एक चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके उसके बुक्स में बोलने के टाइम नाम अलग अलग रहेगा तो भी इंस्ट्रूमेंट एक ही है। वो बोलता है रिसीवेबल, ये बोलता है पेबल। इधर से क्या हो रहा है, लड़की की विदाई हो रही है, उधर क्या हो रहा है, लड़के का गृह प्रवेश हो रहा है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, दोनों जगह से विदाई करने का और दोनों जगह से गृह प्रवेश करने का नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इधर क्या करेंगे, बिल्स पेबल, उधर क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। प्लीज टेल मी, व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? If
The problem has told you the date of drawing of the bill, but the problem has not told you the date of acceptance of the bill. Then the entry for bills receivable in the books of drawer and the entry for bills accepted in the books of drawee both should be passed on the same day, that is the date of drawing the bill. On the other hand, if the problem has given you the date of drawing as well as date of acceptance separately, and these two dates are not matching, in that case, the entry for bill drawn and bill accepted should not be passed on the date of drawing of the bill, but it should be passed on the date of acceptance of the bill. करते में क्या सांगितलं ते? एनी डिफिकल्टी? मैं जरा कंफ्यूज हो गया, फिर से एक बार बताओ. ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री था? तो ड्रॉइंग के बुक्स में क्या एंट्री था? अभी कोई किसी को कुछ देने वाला है कि अभी सब लोग शांत हो गए? शांत हो. कब तक शांत रहेंगे? डेट ऑफ ऑनरिंग तक. डेट ऑफ ऑनरिंग तक. अच्छा, ये ऑनरिंग के डेट में कुछ तो मैंने सुना था, किस तो एनडीडी रहता है और एक एलडीडी रहता है, ऐसा कुछ सुना था. ये नॉमिनल ड्यू डेट क्या क्या रहता है, कभी आता है? आफ्टर एडिंग ग्रेस डेज की विदाउट एडिंग ग्रेस डेज. एंड एलडीडी कब बनता है? हाउ मेनी डेज पीरियड इज कंसीडर्ड ग्रेस डेज? 3 days. आर यू श्योर? एंड इफ सपोज इट सो हैपेंस दैट ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो पीरियड आ रहा है, जो डेट आ रहा है, वो पब्लिक हॉलिडे है, तो 1 day अर्लियर कि 1 day आफ्टर? आर यू श्योर? श्योर ना? अभी 26 जनवरी आने वाला है परसों, तब क्या बोलने का अगर उस दिन आता रहेगा? और सपोज 26 जनवरी को एनडीडी आता रहेगा तो एनडीडी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 26 का 3 दिन जाने का. लेकिन अगर सपोज वो 29 जनवरी आ गया और उस दिन कुछ तो अर्जेंट पब्लिक हॉलिडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 1 day अर्लियर ना. अब अर्लियर कर नहीं सकते क्योंकि तुमको मालूम नहीं कल छुट्टी आने वाला है करके, क्योंकि 1 day आफ्टर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर वो डेट पब्लिक हॉलिडे रहेगा तो अप्लाई योर माइंड. The process is basically for the purpose of helping the transactions to be settled properly. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? अच्छा, अपना 12वीं के सिलेबस के हिसाब से कितने पब्लिक हॉलिडेज हम कंसीडर करते हैं? 26 जैन, 2 अक्टूबर भी कंसीडर करते हैं, और क्या 14 अप्रैल कंसीडर करते हैं? 14 अप्रैल क्या को 12वीं के सिलेबस के लिए क्या है, चाहे तो तुम लोग तुम्हारे प्रोफेसर के साथ पूछ लो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो युगा जी रहता है, उसका कुछ मतलब नहीं. बॉयज एंड गर्ल्स, 12वीं के सिलेबस के लिए कौन सा पब्लिक हॉलिडेज है, तुमको तुम्हारे प्रोफेसर को पूछने का रहेगा. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, रिवीजन है अपना, रिवीजन फटाफट से कर लो. अच्छा ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग कब तक रुकेंगे? एलटीडी तक रुकेंगे कि एनडीडी तक रुकेंगे? एलटीडी तक रुकेंगे. अच्छा, एलटीडी जब आएगी तब कौन किसके पास जाएगा? ड्रॉअर ड्रॉई के पास जाएगा, और ड्रॉई को बोलेगा ड्रॉई पैसा दो. तो ड्रॉई ने पैसा दे दिया, तो एंट्री कौन करेगा? पहला एंट्री कौन करेगा? ड्रॉअर करेगा कि ड्रॉई करेगा? ड्रॉई करेगा. ड्रॉई बोलेगा पैसा दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? ड्रॉअर. ड्रॉअर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश इज गोइंग अप, क्रेडिट व्हाट गोज अप. एंट्री बोलो. अभी तुमने बोला ड्रॉअर इज द रिसीवर, अभी तुमने बोला था ड्रॉअर इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, तो एंट्री होना चाहिए था ड्रॉअर अकाउंट में टू कैश बैंक अकाउंट. बिल्स पेबल किधर से आ गया? क्योंकि ड्रॉअर अभी है ही. ड्रॉअर इज द रिसीवर नहीं बोलने का, हम बोलेंगे राजा तू कौन है, मुझे दिखता ही नहीं. तू अगर ऐसे मेरे सामने आ गया दरवाजे पे और बोला कि पैसा तो मैं बोलूंगा नहीं दूंगा. बोलते सर 3 महीना पहले कोई पूछ गया था, मैं बोलूंगा मुझे नहीं मालूम. बोलते सर ऐसे कैसे पूछ सकते हो? बोलूंगा नहीं, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके रखा हुआ था, वो तेरे पास दिया हुआ था, वो बिल को लेके आ जा तब मैं तुझे पैसा दूंगा. ऐसा डायरेक्टली नहीं आने का, नहीं तो तू अभी पैसा लेके जाएगा और शाम को कोई दूसरा आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बोलेगा पैसा दो, और तब मुझे उसको ऑनर करना पड़ेगा, वरना मेरा क्रेडिट बिजनेस खराब हो जाएगा. तो राजा तेरा चेहरा मत दिखा, उसको मुखोटा लगा के आ जा. मुखोटे का नाम क्या रहेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज. तो आई एम नॉट पेइंग द ड्रॉअर, आई एम पेइंग टू द बिल्स पेएबल. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब मैं बोल रहा था ड्रॉअर इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, तभी तुमको समझना चाहिए था कि गड़बड़ हो गया. ड्रॉअर इज नॉट द रिसीवर, इट इज द बिल्स पेएबल व्हिच इज गेटिंग ऑनर्ड, इट इज नॉट अ ड्रॉअर हु इज रिसीवर. ड्रॉअर अपना नेबर रहेगा, रोज अपने को मिलता रहेगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑनर का डेट पे आएगा और बोलेगा पैसा दो, बोलेंगे सॉरी जब तक बिल लेके नहीं आएगा तब तक नहीं दिखूंगा. मैं तुझे नहीं जानता,
मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जानता हूँ। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो तू आज पैसा लेके जाएगा और 2 घंटे बाद कोई तीसरा आएगा, वो बोलेगा मुझे पैसा दो और बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा, मैं कैसे ना बोलूँ फिर? बिकॉज नाउ आई एम गवर्न नॉट ओनली बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई एम नॉट ओनली गवर्न बाय आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू आर माय नेबर एंड देयर इज अ गुडविल बिटवीन बोथ ऑफ अस, बट आई एम आल्सो गवर्न बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उधर मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा वो सिविल स्कोर खराब हो जाता है। सिविल स्कोर मालूम है कि नहीं? सिविल स्कोर नाम का चीज रहता है, मम्मी डैडी को पूछो सिविल स्कोर क्या है करके। It's a big system which is created in India for the purpose of ensuring that if you are dishonoring the check or dishonoring any particular transaction, installment, CMI, etc., with one bank, then other banks should be also having the capacity to know that you have dishonored certain checks or dishonored certain commitments, so that they will think twice before giving the payment to you. आप क्रेडिट कार्ड पे बिल्स पेमेंट करते हैं तो बराबर से बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग रखते हो, बैंक को कुछ करते नहीं हो, बैंक को बराबर टाइम पे देते हो, तो भी तुम्हारा सिविल स्कोर अफेक्ट होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सिविल स्कोर जितना खराब उतना तुमको नया लोन मिलने को डिफिकल्ट, सिविल स्कोर जितना अच्छा उतना तुमको नया लोन फटाफट मिलता है। अभी तक तुम लोग का सिविल स्कोर क्रिएट हुआ नहीं है। अब तुम बैंक अकाउंट चालू करोगे, चेक्स देना चालू करोगे, चेक्स ऑनर रिटर्न होना चालू होगा, तब से चालू हो जाएगा सब चीजें। जब तुम क्रेडिट कार्ड ले लोगे तब तुम्हारा सिविल का अकाउंट क्रिएट होना चालू होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? एनीवे, द पॉइंट इज ऑन द ड्यू डे if the drawer goes to the drawee and asks for payment, drawee will not honor the bill directly. drawee बोलेगा पहले बिल लेके आ जा फिर मैं पैसा दूंगा। तुझे देख के मुझे अच्छा लगा रहेगा तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, बिल को देख के मुझे पेमेंट करने का मन करेगा। तो आएगा, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। तो बिल लेके आ जा, फिर मैं बिल के सामने पैसा दूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग कैंसिल करेंगे, देन इट इज कंप्लीट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम. पहिले कुठला ट्रान्झॅक्शन झालं, ड्रॉवरने काय केलं, गुड्स विकले, सांगा त्याच्या बुक्स मध्ये काय एंट्री केली आपण, ड्रॉईच्या बुक्स मध्ये. मग एंट्री कोणाच्या बुक्स मध्ये करायची, ड्रॉईच्या बुक्स मध्ये का ड्रॉवरच्या बुक्स मध्ये? ड्रॉवरने काय एंट्री केली सांगा, म्हणजे डेटर कॅन्सल झाला आणि बिलचं नावाचा नवीन ऍसेट क्रिएट झाला, आणि याने काय एंट्री क्रिएट केली सांगा. आता पुढे शांत, कुठपर्यंत शांत, ड्यू डेट येईल तेव्हा कोण कोणाकडे जाईल, काय घेऊन जाईल, बिल्स पेबल घेऊन जाईल, त्याच्यासाठी बिल्स पेबल, आपल्यासाठी बिल्स पेबल. आणि मग हा काय म्हणेल, मी पेमेंट करतोय, कोणाला पेमेंट करतोय, एंट्री सांगा, आणि हा काय एंट्री करायला सांगा. समजा असं काही झालं की ड्यू डेटला आपला हिरो गेला, मुकुटा घालून गेला, बिल ऑफ एक्सचेंजचा दाखवतो, पैसे द्या पैसे द्या, पण आपल्या ड्रॉईने म्हटलं नाही देत जा पैसे, त्याला काय म्हणायचं, मग अशी काय झालं, काय होत आहे, झालं त्याच्या बुक्स मध्ये एंट्री काय करायची, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू. म्हणजे त्याने काय केलं, डिसऑनर केलं, म्हणजे समोर तो मुखवटा घालून आलेला माणूस होता, त्याच्या चेहऱ्यावरचा मुखवटा काढून काढून फेकून दिला, मुखवटा गायब, पण आता माणूस दिसायला लागला. समजतं मी काय म्हणतो ते? कदाचित तो मुखवटा घालून एंडोर्स यायला असू शकतो, आपण म्हणणार नाही, मी तुला ओळखतच नाही, चल तिलाच कट, मी त्याला ओळखतो, त्याला घेऊन येऊ मग बघूया काय करायचं. म्हणून तुम्ही म्हणणार तुझा सिबिल स्कोर तो गेला खड्ड्यात, बघू काय करायचं. म्हणून आर यू गेटिंग द पॉइंट? आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग द बिल, देयर इज सम प्रॉब्लम और एनी पर्टिकुलर सिचुएशन इज देयर, तो बोलता नहीं ऑर्डर करने वाला, जो हो जाएगा देखा जाएगा. इन दैट केस अपने को बोलना पड़ेगा बिल्स पेबल इज गेटिंग कैंसल्ड, बिल्स पेबल इज गेटिंग कैंसल्ड एंड क्रेडिटर इज अगेन कमिंग इन आवर बुक्स. एक तो कैश जाएगा, नहीं तो क्रेडिटर वापस आएगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एंट्री बोलो क्या आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, डिसऑनर का बिल, बिल्स पेबल टू, और उसके बुक्स में क्या एंट्री आएगा, और क्या बोलेगा, मम्मी मेरा मुकुट फाड़ दिया, किसने फाड़ा, इसने फाड़ा. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट एंड डेटर इज कमिंग बैक. Is it clear to all of you? Any difficulty? Now let me consider another situation. Suppose पहले सेल का एंट्री बोलो फटाफट से, इधर परचेस का एंट्री बोलो फटाफट से, बिल ड्रॉ का एंट्री बोलो फटाफट से, बिल्स एक्सेप्टेड का एंट्री बोल दो. अभी एक्चुअली स्पीकिंग ड्रॉइंग सॉरी ड्यू डेट आने तक शांत बैठना चाहिए था, लेकिन अपना जो ड्रॉवर है उसको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो क्या करने को जा रहे हैं, डिस्काउंट करने को जा रहे हैं. उसको कैश की जरूरत है, हार्ड कैश की जरूरत है, तो क्या करने को जाएगा, डिस्काउंट करने को जाएगा. डिस्काउंट करने को किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाके क्या बोलेगा, बैंक बैंक बोलेगा काहे का, वो मेरे पास एक बिल है, वो अपना ड्रॉई है, वो पैसा बाद में देने वाला है, लेकिन तुम मुझे जल्दी पैसे दे दो, और ड्रॉई के पास बाद में तुम ये सर्टिफिकेट लेके जाओ, मुखौटा लेके जाओ, ड्रॉई तुमको पैसे दे देगा. तो बैंक के पास से तुम कल का पैसा आज ही लेने वाले हो,
जो तुमको 3 महीने के बाद मिलेगा, शायद 2 महीने के बाद मिलेगा, वो तुमको आज ही मिलने वाला है। मतलब बैंकर इज वर्किंग लाइक अ टाइम मशीन फॉर यू। जो तुम्हारे जिंदगी में 2 महीने के बाद होने वाला था, वो टाइम मशीन में बैठने कैसे जैसे हो गया। तो टाइम मशीन का टिकट देना पड़ता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? उस टिकट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट चार्जेस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैं उसको डिस्काउंट नहीं बोलूंगा, मैं उसको डिस्काउंट चार्जेस बोलूंगा। मुझे मालूम है 12वीं में तुम लोग डिस्काउंट बोलते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता रहता हूँ। डिस्काउंट बोलेगा तो मुझे अलग अलग चीज दिखता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। फिर ये दोनों डिस्काउंट से अलग है। ये इंटरेस्ट जैसा है, ये समझने के लिए मैं उसको क्या बोलता हूँ? डिस्काउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? Discount is not per annum. Discount allowed, discount received are not per annum. Discount charges are per annum. तुम 2 महीने का बिल उसके हिसाब से वर्किंग होता है ना। फिर बोला बोलिए। Interest is pre-decided on the basis of balance sheet interest. Anybody? Yes. है कोई माइका लाल? नहीं तो लाली लाल टी शर्ट बोलिए। तो लाल टी शर्ट कैसे डाला? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? When it comes to interest, it changes the value of transaction. When it comes to discount, it keeps the value of transaction same. मतलब क्या है? अगर सपोज मैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और 2 महीने का वापस दूंगा ऐसे बोलता हूँ, और 10% इंटरेस्ट रहेगा, तो उसका मतलब होता है 1 लाख पे 10%, मतलब 10,000 हो सकता है 1 साल का, और 2 महीने का चाहिए, तो 10,000 इंटू 2/12 मतलब कितना है बोलो ना। कैलकुलेटर निकालो, अपने पर ज्यादा विश्वास मत रखो। अरे हाँ, वो कितना बताओ मुझे, बस एक तो मुझे मालूम है, उसमें क्या बड़ी बात है। सॉरी, ओके 1667 इज द आंसर ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैंने आज बैंक के पास गया और बैंक को बोला बैंक मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं 10% इंटरेस्ट देने को दे रहा हूँ, 2 महीने का वापस कर दूंगा। बैंक बोलेगा ठीक है, फिर 2 महीने के बाद 666 रुपए वापस करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ लोन इज 1 लाख and value of settlement of transaction is 1,01,667. So the value goes up when it comes to interest. और अगर मैं बैंक को बोलता हूँ कि नहीं आप मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो और डिस्काउंट चार्जेस कट कर दो, तो बैंक बोलेगा ठीक है, 2 महीने का आप मुझे वापस कितना करोगे? 1 लाख ही करो। लेकिन आज मैं आपको 1 लाख नहीं दूंगा, आज मैं आपको 1 लाख माइनस 1,667 कट करके वापस दे दूंगा। सो टुडेज वैल्यू इज द बेसिक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल माइनस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट. And if today's value is equal to principal and tomorrow's value is equal to principal plus interest, then it is called as interest. So if today's value is the value of the instrument, but tomorrow's value is value of the instrument plus interest, then such charges are called as interest. And if tomorrow's value is the value of instrument and today's value is value of instrument minus the amount of interest, then such interest is not called as interest, it is called as discount. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बैंकर आपके साथ खेलता है। याद रखो बैंकर आपके साथ कैसे खेलता है। जब आप होम लोन लेने को जाओगे, अपनी जिंदगी का पहला होम लोन, भी फाउंडेशन है, फिर इंटर होगा, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, फिर जॉब मिलेगा, फिर शादी के सपने देखोगे। शायद अभी भी देखना चालू किया रखा, कुछ पता नहीं है, पर अभी से मत देखो। फिर उसके पहले घर लेने का मन करेगा, फिर बैंकर के पास जाओगे, बैंकर को बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा एनुअल सैलरी इतना सारा, बैंकर बोलेगा अरे वेलकम वेलकम सर, नो प्रॉब्लम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर मैडम जैसा रहेगा वैसा करके, और बाद में आपको फट से लोन देगा। आप बोलोगे अच्छी बात है, लोन मिल गया करके। बैंकर बोलेगा सर आपको 40 लाख का लोन, आपको 50 लाख का लोन, आपको 1 करोड़ का लोन, आप खुश। लेकिन बोलेगा प्रोसेसिंग चार्जेस कट करके लेता है। मतलब 1 करोड़ रुपए का जो लोन रहेगा, उसमें अगर सपोज इसका 1% कुछ तो चार्जेस रहेगा, तो 1 करोड़ का 1% कितना आता है? 10 लाख। बोलो ये फाउंडेशन के बाद में इंटर होने का है, बाद में फाइनल होने का है, बाद में जॉब लगने का है, उसके पहले अगर यही पे गड़बड़ करेगा तो आगे क्या होगा? एक्चुअली हो गया अपना तो कितना 1 लाख। तो आपको क्या बोलेगा? 1 करोड़ का लोन है और 1% हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस है, तो 1 लाख रुपए पहले कट करके लेगा। तो आपके हाथ में आएगा कितना? कैश 99 लाख रुपीज ही आएगा 99 लाख। लेकिन इंटरेस्ट किसको चार्ज करेगा? वो 1 लाख के ऊपर।
हाँ 1 करोड़ दो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बी केयरफुल, बैंकर्स प्ले अ लॉट, दे प्ले समटाइम्स डिस्काउंट एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट। वो तो डबल चीज करेगा, जो ब्रोकरेज रहेगा उसका बेसिक प्रोसेसिंग चार्जेस रहेगा वो कट करके लेगा, लेकिन फिर भी बोलेगा आपको लोन पूरा चढ़ा हुआ है, और बाद में पूरे चढ़े हुए लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाएगा। यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट्स अ टोटली डिफरेंट वे विच बैंकर्स वर्क। दे इंश्योर, कितना तो बार बैंक बोलेगा, ये बैंक बोलेगा नहीं हम लोग आपको 7% पे इंटरेस्ट पे लोन देने को तैयार है, दूसरा बैंक बोलेगा सर हमको 5% पे देने को तैयार है, हम बोलते हैं 5%, चलो अच्छा, लेकिन ये बैंक क्या बोलता रहेगा, 7% लोन है, प्रोसेसिंग चार्जेस 0। और वो बैंक क्या बोलता रहेगा, 5% लोन है लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस 2% टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हमेशा तुम्हारा ट्रांजेक्शन को ठीक से पढ़ने का, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के कुछ भी उड़ी मार के जाने का नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? चलो, सो अभी बैंकर के पास गया, कौन गया बैंकर के पास बताओ? ड्रॉवर के ड्रॉइंग, और ड्रॉवर के बैंकर को क्या बोला, मुझे पैसा तो बैंक में बोला ठीक है डिस्काउंट चार्ज स्टार्ट करता हूं। तो ड्रॉवर के हाथ में बैंकर ने कैश दिया रहेगा, कि ड्रॉवर के हाथ में बैंक ने कैश देने के बजाय उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया रहेगा, उसके अकाउंट में पैसा जमा होता है। डिस्काउंट करोगे तो कभी भी हाथ में ओव्हर द काउंटर कॅश मिळता नाही, डिस्काउंट केल्यावरती कधीही हातामध्ये हार्ड कॅश मिळत नाही। डिस्काउंट केलं तर तुमच्या बँक अकाउंट मध्ये पैसे जमा होतात। म्हणजे इन शॉर्ट डिस्काउंटिंग शुड बी डन बाय द ड्रॉवर इन हिज ओन बैंक। अगर ड्रॉवर का खुद का बैंक सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो बोलेगा एचडीएफसी में जाकर डिस्काउंट करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे उसका ब्रांच है, जहां पे उसका अकाउंट है वहां पे जाकर डिस्काउंट करना पड़ेगा। कधी भी काय म्हणतात ते, त्याला काय मिळणार, पैसे मिळणार, पुढे मिळणार बँक अकाउंट मध्ये मिळणार। एंट्री काय सांगा बरं याची? आणि ड्रॉइंग बुक्स मध्ये काय एंट्री असेल? का बरं नो एंट्री? बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रूल है, जिस ट्रांजैक्शन के तुम पार्टी नहीं हो, सॉरी, जिस ट्रांजैक्शन के तुम पार्टी नहीं हो उस ट्रांजैक्शन को तुम रिकॉर्ड कर नहीं सकते हो। तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंडलेस ने अपने दोस्त को पेन दे दिया, तो फिर मैं उसका रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का, बोलूंगा वो रिकॉर्ड करेगी, ये रिकॉर्ड करेगी, मैं क्यों रिकॉर्ड करने का? सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? एनी डिफिकल्टी? तो बैंकर का और ड्रॉवर के बीच का झमेला है वो देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे। हमको कब देखने का है? ड्यू डेट पे देखने का, तब तक कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर ड्यू डेट पे कौन किसके पास आएगा? बैंकर ड्रॉई के पास आएगा और बोलेगा ड्रॉई फिर ड्रॉई पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा तो क्या एंट्री करेगा? रिसीवर डेबिट, रिसीवर बैंकर अकाउंट डेबिट। बैंकर इम्पोर्टेंट नहीं है, मुकुट आएगा देख, मुकुट का नाम क्या है? बिल्स पेबल। अपने हिसाब से देखा तो बिल्स पेबल, उधर से देखा तो बिल्स रिसीवेबल। मुकुटा कैसे रहता है मालूम है तुम लोगों को? इधर से कलर रहता है, पीछे से व्हाइट रहता है, इधर से क्या दिखता है? बिल्स रिसीवेबल, उधर से क्या दिखता है? बिल्स पेबल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? है वही। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल टू बैंक। फिर बैंकर क्या एंट्री पास करेगा? बैंकर एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर की एंट्री पास करेगा, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ड्रॉई ने और बैंकर ने आपस में किया, बाद में बैंकर ड्रॉवर को पैसा दे देगा। मालूम है यहाँ तक? बाकी का कल बाबू।